Okay, let's discuss exercise 13.4. Someone has doubt in question number 4, right? Are you there or not? Let's discuss question number 4. Question number 4 is like the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter. You have seen that when we blow air in a balloon, तो वो क्या होता है, उनका वो expand करता है, expansion होता है उसका. So at the initial stage, yes, you don't know how. Fine, for that I have to discuss the complete question. I can't start from the middle, right? So initially the radius of the balloon was 7 centimeter, and after blowing the air its radius has increased, and now the new radius of the balloon is 14 centimeter. Find the ratio of surface areas to the balloon in two cases. Now you have to find the ratio of the surface area. देखते हैं. Surface area मतलब balloon is in spherical shape, so for that we have to find the surface area of both the balloons, or else the balloon in both the cases. For this, let us suppose that this is S1 and for that the surface area is S2. So we have to find the ratio of S1 and S2. Surface area of sphere is 4 pi r square. So 4 pi, radius we have taken as small s, so this is small r square. And for the, after blowing air in that, the radius has changed, now it is 14 centimeters. So the new surface area will be 4 pi. These two things are constant, so there will be no change. 4 pi r square, we have taken the radius as capital R, so that it as r square. Now you can see we can cancel these two things because they are constant. So in general we have to find the ratio of square of the radius. अगर हम स्क्वायर ऑफ द रेडियस का रेशियो फाइंड करते हैं, वही हमारे सरफेस एरिया का रेशियो हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर द रेडियस ऑफ द फर्स्ट वन इज 7 एंड द रेडियस आफ्टर ब्लोइंग द एयर इज 14. हो जाएगा इसके आगे 1/4 आ जाएगा, राइट. कैलकुलेशन आप कर लेना. Next, someone was having doubt in question number 6 or 7. Which question? 6. Okay, fine. Question number 6. Okay, fine. Question number 6. Find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeter square. Surface area is given as 154 centimeter square. We have to find out the radius. Radius find करना है. Surface area of sphere is 4 pi r square. This is given as 154 centimeter square. From here we have to calculate r, that is it will become a shift 4 pi to right hand side. It is 4 pi. Substitute the value of pi or else put, it is 22/7. So into 22/7 means we can write it in numerator. अब ये तो नहीं है कि हवा में तो नहीं गया कि 7 ऊपर क्यों लिख दिया, इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. हाँ ठीक है. कैंसल देम, कैंसिल करो जो भी यहाँ पर कैंसिल हो रहा है. 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 एंड 11 4 ज़ा 44. सो और यहाँ पे क्या है, 2 से चला गया ये. वी विल गेट एज 49/4. Now 49 can also be written as 7 square and 4 can be written as 2 square. So we can write it as 7/2 whole square. लिख सकते हैं इसको ऐसे. So square से square cancel and we will get radius as 7/2 centimeters. Is it clear? Okay. Coming to the question number 7.
Question number 7 is like the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. So for a moment, suppose that the diameter of the earth is d. So diameter of the moon is 1/4 of the diameter of the earth. It means it is 1/4 times of the diameter of the earth. So diameter of the moon is 1/4 of d. This is according to the question, that if the diameter of the earth is d, then the diameter of the moon is 1/4 of it. इसका 1/4 हो जाएगा. In the next statement it is given that find the ratio of the surface areas. Again we have to find the ratio of the surface area. We have to perform the same thing as we did in question number 4. Surface area, for a moment, this is surface area of moon to the surface area of earth. Surface area of moon 4 pi r square. So for this, radius will be equals to 1/8d. यही होगा. Radius is half of the diameter. Half मतलब 1/8 हो जाएगा. And for earth, this is radius of the moon and this is radius of the earth. Radius of the earth will be equals to d/2 because radius is half of the diameter. So here this is 4 pi radius of the moon square upon 4 pi radius of the earth square. This 4 pi will get cancelled and we have to find the ratio of radius, the ratio of square of the radius. That is radius of the moon square to the radius of the earth square. Substitute the values, get the answer. Surface area of moon to the surface area of earth is equals to radius of moon is 1/8 d whole square and surface area of earth is radius of earth is d/2 whole square. Just solve them out. इसको solve करो. This can be written as 1/8d whole divided by d/2 whole square. This is in the form of a to the power m divided by b to the power m. We can write it as a upon b whole power m. I think this is clear to you. This again we can simplify it as 1/8d. ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है. This is 2/d whole square. From here d will get cancelled. This is 2 1s are 2, 2 4s are 8. We will get it as 1/4 square and we can write it as 1/16. So ratio of surface area of moon to the surface area of earth is 1/16. Clear है? Okay, someone was having doubt in question number 8 also. चलिए question number 8. Question number 8 is like a hemispherical bowl is made of steel. एक आपकी कटोरी है हेमिस्फेयर शेप में and it is made up of steel. स्टील से इसको बनाया गया है. 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस एंड द थिकनेस ऑफ दिस बाउल. ये कुछ थिक है. कटोरी देखते हो आप, जो बोरोसिल वगैरह के रहते हैं, थोड़ी सी थिकनेस रहती है इनकी. तो इसकी थिकनेस कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर. ये जो थिकनेस है कटोरी की वो है 0.25 सेंटीमीटर. द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज़ 5 सेंटीमीटर. अभी जो इसके अंदर का, इसकी कुछ थिकनेस है तो इसके अंदर का जो रेडियस है, इसके अब 2 रेडियस हो जाएंगे. अगर ये पेन इतनी मोटी है तो अगर मैं इस सिर्फ पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट तो बिल्कुल छोटा सा सर्कल है, और अगर इसके बाहर वाले की बात करूँ, बाहर सर्कल बड़ा है तो रेडियस 2 नहीं होंगे. इस छोटे वाले होल का रेडियस कुछ और होगा और इस बड़े वाले का रेडियस कुछ और होगा, डिफरेंट होगा. तो इसी तरह से बाउल है, बाउल का थिकनेस है तो अंदर ये वाला रेडियस कुछ और होगा और इसकी थिकनेस तक की पूरी बात करेंगे तो रेडियस चेंज हो जाएगा. सो इट इज़ गिविंग इनर रेडियस, मतलब ये थिकनेस इंक्लूड नहीं कर रहा है. थिकनेस को छोड़ करके ये अंदर वाला जो रेडियस है
स्मॉलर रेडियस ये कितना गिवन है आपको, इट इज़ गिवन एज 5 सेंटीमीटर। एंड फाइंड आउट द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आपको फाइंड क्या करना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें रेडियस जो चाहिए, आउटर मतलब हमें इस बाहर वाले पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। हाँ, तो ये वाला रेडियस भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो रेडियस बाहर वाले के लिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल्स टू 5.25 सेंटीमीटर्स। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई टू द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, r is 5.25, write it twice and calculate it. I think calculation तो आप कर लोगे, no need to explain that. हाँ, fine, whatever it is you can do by yourself. Coming to question number 9. Question number 9 is the easiest one, just थोड़ा सा concept use करना था. A right circular cylinder just enclosed a sphere of radius r. एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमने एक स्फेयर डाला है, जो स्फेयर क्या कर रहा है, इसको पूरी तरह से इनक्लोज कर लेना, तो पूरा इसमें फिट हो जा रहा है बिल्कुल। अगर मैं स्फेयर की सेंटर की बात करूं, सो इफ़ वी टेक द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्रीज ऑफ द स्फेयर, देन वी विल ऑब्जर्व दैट ऑल द डिस्टेंसेस आर सेम। सब रेडियस ऑफ द स्फेयर होंगे, सब डिस्टेंस कैसे होंगे आपके, बिल्कुल सेम होंगे। सो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व ये करना है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सिलेंडर का सेंटर की बात कर रही हूँ मैं, सिलेंडर का जो यहाँ पे टॉप है उसके सेंटर की बात कर रही हूँ। ऊपर टॉप का सेंटर और बॉटम का सेंटर अगर हम ज्वाइन करते हैं, सो दिस इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यही सिलेंडर की हाइट होती है। और अगर मैं उसको स्फेयर के साथ कंपेयर करूँ, देन फ्रॉम हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज़ ट्वाइस ऑफ द रेडियस, दिस हाइट इज़ ट्वाइस ऑफ द रेडियस, बिकॉज यहाँ पर भी हमारे पास स्फेयर का एक रेडियस है, यहाँ पर भी एक रेडियस है। सो दिस हाइट, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ ट्वाइस ऑफ द रेडियस। So in this case height of the cylinder is twice of the radius of the sphere. और यहाँ पर सिलेंडर का रेडियस और स्फेयर का रेडियस सेम होगा, बिकॉज यू कैन चेक आउट ओवर हेयर, ये होगा हमारा सिलेंडर का रेडियस और यहीं से सेंटर गया है, ये है हमारा स्फेयर का रेडियस। सो फ्रॉम हेयर रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ स्फेयर बोथ आर इक्वल, दोनों कैसे हैं, सेम हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट बिट इज़ लाइक व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। सो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर वी ऑल नो 4 pi r square. Just simply write the formula. Second one, curved surface area of cylinder. Curved surface area of cylinder is 2 pi r h. Now here height is equals to twice of r, 2 times of r at. Height is 2 times of radius of the sphere. So just substitute it. It will come as 2 pi r. H will become as 2 r. We can write height as twice of radius. Solve it. This will come as 4 pi r square. So from here the curved surface area of cylinder in terms of the radius or else in terms of the sphere, after comparing it with the sphere, we are getting it as 4 pi r square. तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो था और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इन द थर्ड बिट इट इज़ आस्क्ड टू यू टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल्स टू, रेशियो फाइंड करेंगे तो 4 pi r square divided by 4 pi r square. These both of them will get cancelled out. We will get it as 1:1. रेशियो आ जाएगा दोनों का 1:1. ठीक है, क्वेश्चंस हो गए।
We are done with the surface areas. Now coming to the next concept, that is the name, as the name of the chapter is surface area and volume. Next we are going to discuss about the volume. I'll discuss the formulas. You have to solve the questions based on that. First of all we have discussed about cube and cuboid as they are similar. इनकी फ्लैटेंड सरफेस होती है, सिमिलर है, तो क्यूब क्यूबॉइड की बात करते हैं. अब वॉल्यूम एक्चुअल में होता क्या है. When we were talking about the surface areas, in that I have discussed that हम surface की सिर्फ एरिया की बात करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट आपके पास जिस शेप में है उसके सरफेस का एरिया क्या है. बट when we are talking about the volume, वॉल्यूम है क्या. वॉल्यूम कोई बता पाएगा मुझे वॉल्यूम होता क्या है, किसे बोलते हैं वॉल्यूम. Okay, space occupied by a solid. It means if I say this pen is occupying this much of space, it means it is the volume of the pen. हाँ या नहीं. Why are you getting confused when you are right? If you know the concept, you must be confident with that. Yes, volume is nothing but the space occupied by an object. कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्पेस में कितना एरिया कवर, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वही होता है उसका वॉल्यूम. अगर मैं एक क्यूब ले लूँ और क्यूब आपका कितना एरिया कवर कर रहा है या फिर कितना स्पेस 3 डायमेंशन में ऑक्यूपाई पूरा कर रहा है, वही है आपका क्या है, उसका वॉल्यूम है. दूसरी टर्म्स में बोल सकते हैं वॉल्यूम इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू होल्ड समथिंग. किसी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी कि वो कितना, अगर मैं इसमें कोई लिक्विड फिल करती हूँ तो लिक्विड क्या करेगा, इसकी शेप को रीगेन कर लेगा. तो उसकी कैपेसिटी कितनी है किसी चीज़ को होल्ड करने की, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं. इन शॉर्ट वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ द स्पेस इट ऑक्यूपाइज. वॉल्यूम क्या है, मेजर ऑफ द स्पेस इट ऑक्यूपाइज. कितना स्पेस कवर करता है वो, वही क्या है, उसका वॉल्यूम है. और अगर दूसरी बात करें कैपेसिटी से रिलेट करें तो कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर मैं इस क्यूब की ही बात करूँ, इसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इट इंटीरियर कैन एकोमोडेट. अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो कैपेसिटी क्या है, मतलब कितना होल्ड कर सकता है. इसकी कैपेसिटी मतलब बोलोगे आपकी कैपेसिटी कितनी है इस काम करने को, आप कितना कर सकते हो, क्या स्ट्रेंथ है आपकी. तो सेम वॉल्यूम के केस में भी कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इट्स इंटीरियर कैन एकोमोडेट. इसका जो अंदर का जितना भी इसमें स्पेस है, ये कितना वॉल्यूम एकोमोडेट करता है, वही क्या है, इसकी कैपेसिटी है. ठीक है, तो ये हो गया. अगर हम क्यूब और क्यूबॉइड की बात करें, क्यूब और क्यूबॉइड बनते किससे हैं, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर से फॉर्मेशन इनकी होती है. अगर मैं एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल ऐसे स्टैक कर दूँ, उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल स्टैक कर दूँ, तो एक रेक्टेंगल के ऊपर मैं इस पेन के ऊपर या रेक्टेंगुलर शेप में मान लो इस पेन के ऊपर एक पेन रख दूँ, देन इसके ऊपर एक और पेन रख दूँ, तो क्या होगा, इसकी हाइट इंक्रीज़ होती चली जाएगी. आपका रेक्टेंगल का डायमेंशन सेम है एंड इफ़ आई एम स्टैकिंग वन रेक्टेंगल ओवर द अदर, व्हाट विल हैपन, उसका क्या होगा, हाइट ही इंक्रीज़ होगा. अगर एक के ऊपर एक बुक के ऊपर एक बुक, सेम बुक है आपके पास, एक के ऊपर एक स्टैक करते जाओगे तो क्या होगा, उसकी हाइट इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी. तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है आपका, देखो पहली बात तो ये इसका एरिया है, इतना स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा ही जितना इस रेक्टेंगल का एरिया है. इट मीन्स इट्स एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इतना ऑक्यूपाई तो स्पेस करेगा ही. अब साथ में इसको स्टैक कर रहे हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख रहे हो, तो इसकी जितनी हाइट होगी वो भी स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, तो ये एरिया अपना तो ऑक्यूपाई कर रहा है. अगर मैं इसके एरिया को ऊपर हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये. और जो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वही होता है
वॉल्यूम, जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है यही हो जाएगा आपका वॉल्यूम। क्लियर है क्या? वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्या होती है? क्यूबिकल होती है, बिकॉज हियर वी ऑलवेज टॉक अबाउट द 3 डायमेंशंस। इन केस ऑफ एरिया वी वर टॉकिंग ओनली अबाउट द 2 डायमेंशंस, बट इन केस ऑफ वॉल्यूम वी ऑलवेज टॉक अबाउट 3 डायमेंशंस। दैट्स वाई इट्स यूनिट इज़ ऑलवेज क्यूबिकल। इसकी यूनिट हमेशा क्यूबिक होती है, मतलब मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी होगा इसकी यूनिट कैसी होगी? क्यूब में होगी हमेशा। तो इसलिए वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में होगी। ये लिखना या फिर इसको याद रखना मत भूलना। नेक्स्ट, वॉल्यूम क्यूब क्यूबॉइड का हो गया। तो ये हो गया आपका क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब आते हैं नेक्स्ट हम सिलेंडर के ऊपर। अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो सिलेंडर कैसे बना हुआ? अगर सिलेंडर को हम देखें तो सिलेंडर की फॉर्मेशन कैसे हो रही है? एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल अगर हम स्टार्ट करते जाते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। अगर एक सर्कल के ऊपर हम दूसरा सर्कल स्टार्ट करते जाएं, ऊपर 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 रखते जाएं, तो एक सिलेंडर की फॉर्मेशन होती है। तो अब ये सिलेंडर कितना स्पेस, हमें वॉल्यूम है क्या? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट। जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वही उसका वॉल्यूम है। तो सिलेंडर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? सिलेंडर इस सर्कल के एरिया के बराबर पहला तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इतना तो स्पेस ले ही रहा है जितना इसका एरिया है। तो ये पाई आर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल का स्पेस तो ले रहा है। इसके साथ में अब इसके ऊपर मैंने दूसरा सर्कल किया, तीसरा सर्कल किया, फोर्थ सर्कल, फिफ्थ सर्कल मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जितनी इसकी हाइट बनेगी, अगर मैं उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा टोटल स्पेस कितना कर रहा है। And this is nothing but the space occupied by an object is its volume. So volume of cylinder is pi r square h. यह आपका सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, पाई आर स्क्वायर एच होता है। नेक्स्ट, थर्ड वन इज द कोन। कोन थोड़ा सा लॉजिकल है, आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए घर पर प्रैक्टिकल कर सकते हो। कोन के लिए क्या करेंगे? आप एक सिलेंडर लेना या फिर सिलेंड्रिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट लेना, नहीं तो पेपर से बना लेना, और नेक्स्ट लेना है आपको एक कोन। हियर वी हैव 2 कंडीशंस। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द कोन मस्ट बी सेम। ये जो दोनों का रेडियस है ये सेम होना चाहिए, मतलब इसको अगर इसके ऊपर रखो तो कम्प्लीटली आ जाए। एंड द सेकेंड कंडीशन इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द कोन मस्ट बी इक्वल। जो आप कोन और सिलेंडर लोगे दोनों की हाइट भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये दोनों बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। 2 कंडीशंस हैं आपके पास, हाइट एंड रेडियस दोनों का सेम होना चाहिए। Now what you have to do, fill this cone with sand. इस कोन को क्या करो? सैंड से फिल करके सिलेंडर में डाल दो। ये आप देखोगे कि ये सिलेंडर अभी फिल नहीं हुआ। एक बार आपने डाल दिया, सिलेंडर फिल नहीं हुआ। अब क्या करोगे? फिर से इसको कोन को पूरा फिल करना है सैंड से, इस सिलेंडर में डालना है। एक और बार आपने डाला, अभी भी आपका सिलेंडर क्या है? फिल यहाँ पर नहीं हुआ है। नेक्स्ट केस में क्या करोगे? फिर से एक कोन को पूरा फिल करोगे सैंड से और सिलेंडर में डाल दोगे। अब आप क्या देखोगे कि ये आपका सिलेंडर कम्प्लीटली फिल हो चुका है। इसका मतलब 3 फुल ऑफ कोन्स अगर हम सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये आपका पूरा का पूरा फिल हो जा रहा है, पूरा कवर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यही है। इससे हमें यही पता चलता है कि हमने 3 बार कोन को भरकर इसमें डाला तब जाके ये फिल हुआ है। इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ पाई आर स्क्वायर एच। So volume of cone is 1/3 of pi r square h। ये आप वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। इसमें कुछ डाउट?
ये प्रैक्टिकल आप थोड़ा सा हमेशा याद रखने के लिए कर सकते हो, तो ये हमेशा आपको याद रह जाएगा। तो